बच्चों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों का नया चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज अमालगमेशन ऑफ कंपनीज। बच्चों, इन प्रीवियस क्लास आई टॉट यू दैट व्हेन टू और मोर कंपनीज कैरिंग ऑन सिमिलर टाइप्स ऑफ बिजनेस combine with each other, but first of all they are required to went into liquidation। उनको क्या करना पड़ेगा? Go into then combine with each other बच्चों, in order to maximize the economies of large scale production, आपका large profit and to avoid the बच्चों cut throat competition। एक्चुअली जब मार्केट में कोई नया बड़ा बिजनेसमैन आने वाला है, कंपनी खुलने वाली है, तो उस कंपनी को दूर करने के लिए या अगर दो अच्छी कंपनी मार्केट में एस्टेब्लिश ऑलरेडी अगर वो दोनों मिल जाती हैं तो उनको मिलने से क्या होता है, उनका जो इंडिविजुअल रेपुटेशन था, गुडविल था, इंडिविजुअल सिचुएशन था, इंडिविजुअल प्रोडक्शन स्ट्रक्चर था, उनका इंडिविजुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी था, प्रॉफिट कैपेसिटी था, दोनों मर्ज हो जाने से बच्चों वो कैपेसिटी दोनों के मिलने के बाद जो टोटल होता है उससे भी ज्यादा हो जाता है। So whenever, but it is possible only when two or more companies carrying on similar types of business, and the objective behind such बच्चों आपका amalgamation is to maximize the economies of large scale production, maximize the profit, avoid the cutthroat competition बच्चों, but they are required to first went into liquidation। समझ में आया? And once बच्चों amalgamation होने के बाद क्या होता है, they make a new company, they form a new company। First of all they individually enter into liquidation, they lost their बच्चों individual identity and a new company is formed after amalgamation, that is known as बच्चों amalgamation of companies। And the details procedures about the accounting for amalgamation is specified, is prescribed, is given, is mentioned in detail बच्चों in आपका accounting standard 14। So if you want to know the details of the accountings relating to your amalgamation of companies, you must go through बच्चों accounting standard 14। But the term amalgamation refers to बच्चों combination of two or more companies in order to avoid the cutthroat competition and to maximize the क्या करना है हमें, economies of the large scale production in order to maximize the production, profitability, growth of the company। जहाँ भी लिख पे है ना। And details of this amalgamation is given in accounting standard 14। उसके बाद when the term पढ़ाए थे parties में, it involves two parties, one is your transferor, another one is your transferee। What is mean by transferor बच्चों? It refers to the company, it refers to the company which is amalgamated into another company, and the transferee company means a company into which the transferor company is amalgamated। Okay, so transferor company means a company which is amalgamated into another company, and transferee company means a company into which the transferor company is बच्चों amalgamated। Clear? Now write down बच्चों, आज का लिखो रिजर्व। रिजर्व, आप सभी को रिजर्व का मतलब मालूम है बच्चों, एवरी ईयर ए पार्ट ऑफ द प्रॉफिट इज केप्ट असाइड टू मीट एनी फ्यूचर कंटीजेंसी, दैट इज नोन एज रिजर्व। सभी को मालूम है। Write down only heading the reserve, RESERVE। As we all know बच्चों, the meaning of reserve सभी को मालूम है, every year a part of बच्चों profit is kept aside to meet any future contingency, that is known as reserve। and बच्चों reserve and provision में difference क्या है? अगर मुझे मालूम है कि फ्यूचर में ये प्रॉब्लम होने वाला है एंड उस प्रॉब्लम को मीट करना है, पर्टिकुलरली उस एसेट्स को खरीदना है, मेरे पास आज एक बच्चों मशीनरी है जो मशीन 5 साल के बाद खराब होकर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो मुझे उसके लिए पैसा रखना है या नया मशीन मुझे खरीदना, दैट इज नोन एज प्रोविजन। दैट मीन्स मुझे पहले से मालूम है कि वो प्रॉब्लम होगी। द नॉन लायबिलिटी माने जो जिस लायबिलिटी को, जिस कॉन्टिजेंसी को हम जानते हैं, पर हाँ कब होगा अलग बात है, पर हम जानते हैं वो होगा ही होगा। So every year a part of profit बच्चे is kept aside to meet any बच्चे non liability, that is known as आपका provisions। Similarly बच्चे every year a part of profit, net profit बच्चे is kept aside to meet any unknown liability, जिस liability के बारे में हमें मालूम नहीं है, that is known as reserve। And during बच्चा amalgamation one of the most important aspect is होगी
क्या हो रहा है आपका रिजर्व, समझ में आया कि नहीं। सो बिकॉज वाइल परचेजिंग ए कंपनी, अगर हमें कंपनी खरीदते हैं बच्चों, वी आर नॉट ओनली बाइंग देयर एसेट्स बच्चों, उनका शेयर्स नहीं खरीद रहे, एसेट्स नहीं खरीद रहे, बट ऑल्सो वी परचेज देयर बच्चों रिजर्व, उन्होंने जो आज तक सेविंग्स करके रखा है उसको खरीद रहे हैं। एलोंग विद बच्चों वी आर बाइंग देयर गुडविल, उनकी गुडविल भी हम खरीद रहे हैं, है या नहीं। तो उनका रिजर्व हमारे पास आ रहा है, उनकी गुडविल हमारे पास आ रहा है। दैट्स व्हाई द रिजर्व इज द थर्ड इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ द अमालगमेशन। टर्म्स समझ में आया। तो राइट डाउन बच्चे रिजर्व, इट मीन्स द पोर्शन ऑफ, इट मीन्स the portion of earnings, it means the portion of बच्चों earnings comma receipts और अदर सरप्लस। कंपनी में कोई भी बच्चों सरप्लस बचता है तो वहां से रिजर्व रखा जाता है। आई टॉट यू इन द फाइनल अकाउंट क्लास में पढ़ा है बच्चों, अगर सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा तो कंपनी क्या करेगी, रिजर्व केप्ट करेगी। ओके, सो इट मीन्स बच्चों द पोर्शन ऑफ आपका अर्निंग्स हो, रिसीप्ट्स हो या अदर सरप्लस ऑफ एन एंटरप्राइज, ऑफ एन एंटरप्राइज, ब्रैकेट में लिखना उसके बाद वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, वेदर कैपिटल और रेवेन्यू, ब्रैकेट ओवर appropriated by the management for a general or a specific। बच्चा रिजर्व जनरल भी होता है, स्पेसिफिक भी होता है। जैसे कि सिंकिंग फंड या डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व मतलब हम उस रिजर्व में जो पैसा रखेंगे, जिस दिन डिवेंचर होल्डर को पैसा रिटर्न करना है तो उस दिन उनका पैसा कहां से दिया जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो स्पेसिफिक रिजर्व भी होता है और जनरल रिजर्व भी होता है। तो क्या लिखा, फॉर ए बाय द मैनेजमेंट फॉर ए जनरल और स्पेसिफिक पर्पस, अदर देन ए प्रोविजन, लेकिन प्रोविजन नहीं होगा, अदर देन ए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन और बच्चों डिमोलेशन, सेम DIMULATION in the value of assets or for a non-liability, non-liability। Then write down characteristics of amalgamation। लिखो फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स, उसमें लिखो बच्चों amalgamation must require बच्चों 2 or more companies। amalgamation must require, बच्चों जो हमने लिखा था ना डिमोलेशन लिखा था ना, वो वर्ड काट दो, वो गलत है। यहाँ पे गलत डिमोलेशन लिखा है, ऐसे होगा नहीं, काट दो उसको। वो डिमोलेशन यस सिमुलेशन होगा, सेम छोड़ दो, बस डेप्रिसिएशन को ही मेंटेन करो।
हुआ? लिखो, amalgamation must require two or more companies. Two or more companies to amalgamate. amalgamate, amalgamate or merge themselves. Second, all the existing companies, second point, all the existing companies which are merged are to be liquidated. Are to be liquidated. Are to be liquidated. Next, third point, a new company is formed. A new company is formed to take over the business of the existing companies. To take over the business of the existing companies. Which are merged. Which are to be merged. देखो, which are to be merged. MERGED, merged. Next, the value of, next point, the value of the new company formed, the value of the new company formed is expected to be greater than the total of the independent values. The total of the independent values of the amalgamating companies, because of economies of large scale production. Large scale production. Comma, savings in cost by elimination of duplicate activities and facilities and by avoiding the
disastrous, disastrous results of cut cut throat throat competitions, cutthroat competitions. Okay, and you can also write amalgamation. Next point, amalgamation involves आपका टू पार्टीज, हुआ ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी. which are transferer and transferee. Okay, छोड़ो. Then write down बच्चों types of amalgamation. Write down types of amalgamation. हुआ थोड़ा लिखो. On the basis of accounting point of view, on the basis of accounting point of view, comma, amalgamation can be of two types. Two types. Okay, first लिखो amalgamation in the nature of merger. Very important है ये बात. Amalgamation in the nature of merger. In the nature of merger. Second one बच्चों amalgamation in the nature of purchase. Amalgamation in the nature of merger. Second, amalgamation in the nature of. तो write down first बच्चों amalgamation in the nature of merger. Amalgamation in the nature of बच्चों merger. इसको और बोलते हैं बच्चों और मर्जर लिखा ना, और लिखो पुलिंग इंटरेस्ट मेथड. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और पुलिंग इंटरेस्ट मेथड. पुलिंग इंटरेस्ट मेथड ऑफ अमालगमेशन. अंडरलाइन करो, लिखो amalgamation in the nature of merger सीटूटनल नहीं ऐसे नेक्स्ट टाइम लिख पाइयो. amalgamation in the nature of merger is done when all the following conditions are fulfilled. When all the following conditions are fulfilled.
First point, all the assets and liabilities of the transferor company, all the assets and liabilities of the transferor company become after amalgamation, the assets and liabilities of the transferee company. The asset and liability of the, मैंने ट्रांसफर कंपनी का सारा एसेट लायबिलिटी किसका हो जाएगा? ट्रांसफरी कंपनी का. ओके, को मेथड रे मर्जर रे. सेकंड पॉइंट, द shareholders holding not less than 90% of the face value, holding not less than 90% of the face value of the equity shares of the transferor company, ट्रांसफर कंपनी जो शेयर होल्डर मान पाखे 90% रो इक्विटी शेयर थिबो, हाँ, नॉट लेस देन, बिकम द इक्विटी शेयर. बुझ ना? धरो सपोज ट्रांसफर कंपनी में तुम लोग हो, तुम्हारा कितना परसेंट वहां पे है? 90%. जितने मो सहित मिसजीव तुम्हें मो कंपनी कौन हो, तुम लोग मेरी कंपनी में क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर. बुझला ना? नहीं. द शेयर होल्डर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 90% ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी आफ्टर अमालगमेशन बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द, मैंने शेयर होल्डर निकल नहीं जाएंगे, तुम लोग रहोगे. तुम किस कंपनी में बन जाओगे? ट्रांसफर कंपनी. कौन लिख लो? दिस शेयर होल्डर होल्डिंग नॉट लेस देन 90% इक्विटी शेयर बिकम जैसे पहले लिखा था पहला पॉइंट, बिकम के बाद कॉमा, आफ्टर अमालगमेशन, क्या लिखोगे? द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी. थर्ड पॉइंट, okay, the consideration, third point, the consideration for the amalgamation receivable, the consideration for the amalgamation receivable by those equity shareholders of the transferor company who agree to become the equity shareholders of the transferee company. Who agree to become equity shareholders of the transferring company is discharged by the transferring company. Wholly, 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 by the issue of equity shares. In the transferee company.
जो शेयर होल्डर माने इधर देखो जो शेयर होल्डर माने ट्रांसफरी कंपनी शेयर होल्डर हवा पे राजी हेबे किंतु सेति पे ताऊ किछ कंसीडरेशन दाउ पड़थुओ सपोज तमे मो सहित मिसो कि तमे मोड किछ पाइबो है ना सपोज तुम शेयर वैल्यू अधिक थी आम कंपनी शेयर ठार तुम्हें आम सहित मिसो तो तुम लोग जब मेरे साथ मिलोगे मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनोगे एंड यू आर एट द सेम टाइम एंटाइटल्ड टू गेट सम कंसीडरेशन तुम्हें अगर कुछ मुझसे लेना होगा तो दैट कंसीडरेशन को मैं पूरा करेगी उस कंसीडरेशन को मैं दूंगा बच्चों बाय इशूइंग सम इक्विटी शेयर फ्रॉम माय कंपनी। तो ट्रांसफरी कंपनी कौन करियो उस कंसीडरेशन के लिए आपको क्या देगा कुछ इक्विटी शेयर अपनी दोज शेयर होल्डर्स हु आर एग्री टू बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी फॉर सम कंसीडरेशन एंड फॉर दैट कंसीडरेशन के लिए ट्रांसफरी कंपनी बच्चों क्या देगा तुमको कुछ इक्विटी शेयर्स देगा। मैंने ऊपर क्या बोला अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या पुलिंग इंटरेस्ट मेथड ऑफ अमालगमेशन रिक्वायर्स सैटिस्फैक्शन ऑफ ऑल द कंडीशंस इफ एनी वन ऑफ द कंडीशंस इज नॉट बच्चों सेटिस्फाइड दैट मींस दैट इज नॉट द अमालगमेशन वो अमालगमेशन होगा नहीं। समझ में आ गया। एन अमालगमेशन इज सेड टू बी अमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर अगर अमालगमेशन को मर्जर के रूप में अमालगमेशन कभी तब बोला जाएगा जब ये सारी कंडीशंस पूरी होंगी। नेक्स्ट पॉइंट the business of the transferor company is intended to be carried on after the amalgamation। बच्चों ट्रांसफर कंपनी का बिजनेस चलेगा कि बंद हो जाएगा? चलेगा। बट कौन चलाएगा? ट्रांसफरी कंपनी। द बिजनेस ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज इंटेंडेड टू बी कैरिड ऑन आफ्टर अमालगमेशन होगा कि नहीं होगा? बट कौन चलाएगा? ता बिजनेस चलिबो ना बंद हो सब तार एम्प्लॉइज रहिबे सब चलिबो ना रहिबनी सब रहिबो बट बाय द ट्रांसफरी कंपनी लिखो अमालगमेशन के बाद लिखो कॉमा बाय द ट्रांसफरी कंपनी। बाय द ट्रांसफरी कंपनी तुम्हारा बिजनेस चलेगा बच्चों बंद नहीं होगा। ठीक है। देन नो एडजस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट नो एडजस्टमेंट इज इंटेंडेड टू बी मेड टू द बुक वैल्यूज ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज of the transferor company when they are incorporated in the financial statements तमर क्लास नहीं रे श्रीधर तमर वर्तमान क्लास नहीं इवनिंग क्लास अच्छी हैला तुम कॉल कर आमर +3 फास्ट को फास्ट कथा कही +2 ना +3 नुहे रे +3 फास्ट मु बुझली आ तो +3 फास्ट स्टूडेंट ना ओके इवनिंग रे क्लास करियो जाओ। क्या लिखा बच्चों? पॉइंट नंबर 5 कौन कितना पॉइंट ना no adjustment is intended to be made in the book value of the assets and of the transfer company when they are in the financial statements of the transferring company except to maintain या to ensure लिख दिया to ensure the uniformity of accounts या accounting policies the uniformity of accounting policies first up
नीचे लिखो all these are the points required to be fulfilled, all these are the conditions required to be fulfilled for an amalgamation in the nature of merger or pooling interest method of amalgamation. सारे पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, amalgamation in the nature of purchase. Write down, an amalgamation should be considered to be an amalgamation in the nature of purchase, an amalgamation in the nature of purchase when any one or more of the conditions, an amalgamation should be considered to be an amalgamation in the nature of purchase, comma, when any one or more of the conditions specified for amalgamation in the nature of merger is not satisfied. I think सबको समझ में आया। यदि उपरोक्त ऊपर वाली जितनी कंडीशन से 5 कंडीशन थी, उस 5 कंडीशन में कोई 1 या 2 या 3 कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं? अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। उपरोक्त ऊपर जितनी भी बच्चों कंडीशंस थी, 5 कंडीशन अगर फुलफिल होती है, दैट इज नोन एज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। इधर देखो, मर्जर मतलब मर्ज हुआ और परचेज मतलब मैंने तेरे को खरीद लिया, वो भी तुम मेरे साथ जुड़ेगा, पर मर्जर दोनों मिले एंड इसे मैंने खरीदा। सो यदि 5 कंडीशंस ऑफ द अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर आर फुलफिल्ड, दैट इज नोन एज अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। या उसको बोलते हैं बच्चों पूलिंग इंटरेस्ट मेथड ऑफ अमालगमेशन। But in case बच्चों any 1 or 2 or 3 या any 1 or more of the conditions given in the amalgamation in the nature of merger is not satisfied, then that is known as amalgamation in the nature of exam में आएगा बच्चों, what do you mean by amalgamation in the nature of purchase? Okay, first off, in fact वहीं लिखो, ये मीनिंग हो गया। In fact, under this type of amalgamation generally one company, यहां तो मालूम पड़ रहा है परचेज में तुमको खरीदूंगा ना, वन कंपनी बच्चों एक्वायर्स अनदर कंपनी। एक्वायर्स माने कौन? परचेज। जनरली वन कंपनी एक्वायर मतलब खरीद लेती है ना, नहीं एक्वायर्स। परचेज तो ठीक लागू नहीं, सिर्फ एक्वायर लिख ला। अनदर कंपनी एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स of the combining and the equity shareholders of the combining entities do not continue, equity shareholders of the combining entities बा कंपनी जो भी है ला मिसी की जुड़ा, do not continue to have proportionate shares, to have proportionate share in the equity of the combined entity
or the business of the acquired company, or the business of the acquired companies is not intended to be combined after the amalgamation. After the amalgamation. हेला कंपनी हेला मतलब कंबाइंड कंपनी नहीं बोला जाएगा, ये अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ क्या होगा, परचेस मु तमु केणी भी सिटी कोन मर्जर मतलब मर्ज हेले, क्लियर. So if any one or two or more conditions of the amalgamation in the nature of merger is not satisfied, then that is known as amalgamation in the nature of purchase. So how many types of amalgamation? Two types. Amalgamation in the nature of merger, question पढ़ियो 4 marks 3 marks, and amalgamation in the nature of purchase पढ़ियो है ना. In next class रे पढ़ियो बच्चों difference between amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. Okay, write down question. अब तुम्हारा मंडे ट्यूसडे 2 दिन छुट्टी है, बताया था मैंने कल. तो सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं. घर पे रहो, सेफ रहो. अगर बाहर जा रहे हो तो मास्क पहन के सैनिटाइजर लेके जाओ. नो प्रॉब्लम बच्चों, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना से सामना करना है. अपना ख्याल रखो, अपने पेरेंट्स का भी, और सभी अच्छे स्टूडेंट्स बनो. क्लास टाइम पे आओ, बार बार रिपीट ना करना पड़े. होमवर्क करके दिखाओ. योर हॉलीडे होमवर्क बच्चों है आपका शेयर कैपिटल के एनी 5 प्रॉब्लम करके दिखाओगे. एनी 5 मतलब तुम लोगों को करना है जहां पे फॉरफीचर इशू होगा. ऐसा नहीं बस नॉर्मल प्रॉब्लम कर दोगे, पार बियॉन्ड डिस्काउंट. देन फाइनल अकाउंट्स के बच्चों एनी 5. एंड जो बच्चे बोल रहे थे सर फाइनल अकाउंट नहीं समझे, मुझे बोलना आज से, जिस समय टाइम होगा मैं तुमको फाइनल अकाउंट पूरा कंप्लीट एवरी बच्चे समझ पाएंगे. मैं पर डिटेल में फाइनल अकाउंट धीरे धीरे पढ़ाया हूँ, पूरा स्लोली पढ़ाया हूँ. फाइनल अकाउंट हुआ पूरा फॉर्मेट के साथ, प्रॉब्लम हर एक प्रॉब्लम समझ में आएगा. तो मुझसे मांग लेना टाइम पूछ के, और मैं तुमको फाइनल अकाउंट दे दूंगा. तो फाइनल अकाउंट के 4-5 प्रॉब्लम करना, इसका 4-5 प्रॉब्लम करना, एंड गुडविल बच्चों कंप्लीट करना. उसके बाद एफएमआई जितना पढ़े उसको पढ़ना स्टार्ट करो. ओके, टेक केयर बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल.